everyone, welcome to the part 4 video. This is Advocate Ashok Chaudhary. So we are going through the Archikar medical case. This is the part 4 of this video. ये order है, I think date was, it is 17/9/2024. 17/9/24 का order है ये. So court was, what did the court said, कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह की बहस चल रही थी, ये सब अपीयरेंस के कुछ फ्रंट के पेजेस हैं. ऑडियो शुरू होता है पैरा 1 से. तो हमेशा की तरह हम लाइन बाय लाइन पैरा बाय पैरा समझने की कोशिश करेंगे. तो 17 सितंबर 2024 को श्री सत्यवीर सिंह जो है DIG, इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग वी हैव हर्ड काउंसिल अपियरिंग, ये कोर्ट ने लिखवाया है दैट द पेरेंट ऑफ डिसीज्ड डॉक्टर ऑफ द ओरिजिनल बिफोर द हाई कोर्ट वी हैव एक्सप्लेन ऑल द काउंसिल दैट at this stage it would not be in interest of the fair and complete investigator to disclose the leads which are being perused with the CBI. वही बता रहे हैं कि CBI ने जो भी मेंशन किया है वो इस स्टेज पर बताना सही नहीं होगा और सब कुछ ओपन करना सही नहीं होगा, डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा. Since this may only lead to disclosure of investigation and the council within the area of the disease doctor and the affair also agree. और सबने हाँ भी बोला कि सही बात है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. Not be further place on the state and regard to ongoing investigation. That is what I am saying. पैरा 3 में कहा गया है जो लेटर जो है, जो यहाँ पर मेंशन है कि फादर कंसर्न रिगार्डिंग, जो फादर हैं डिसीज के, उनकी कंसर्न था कि फादर कंसर्न रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन. The father of the deceased expressed concern in a letter dated 22 September 2024. The court directed that the CBI should consider the father's suggestion. The court noted that many concerns in the letter were already part of the active investigation. वही जो उनकी कंसर्न थे, कोर्ट ने कहा कि इसको भी सुना जाए. कंसर्न क्या थे? जेन्युइन कंसर्न पेरेंट डिसीजन सर्टेन आस्पेक्ट शुड बी bearing in mind of genuine concern of the parent of the deceased, we are input on the furnish of the father related to the investigation of यहाँ वही कहा गया है कि ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है, तो मतलब कंसिडर ही किया गया. Miss Indira Jaising, senior counsel appearing on behalf of resident doctor, submitted that there is a definite material available on the resident doctor indicating the presence of the person scene of the crime they would wish to share with the CBI. She has, however, stated that it would not be appropriate in the interest of justice and reveal the name of the stage. But the details of the have been handed over immediately with IO of the CBI. It may be noted in carried out. A copy may be shared with to make it investigation. वही बोल रही है कि जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन पर जो था, जो बहुत सारे उनके पास प्रूफ हैं कि क्राइम सीन पर जो है उस तरह की चीज़ें हुई हैं, क्राइम सीन पर इन्वॉल्वमेंट हुई है इंडिविजुअल्स की, और उन्होंने वही बता रहे हैं कि appearing the resident doctor stated that they had informed of individual at the crime. कुछ इंडिविजुअल हैं जिनके नाम वो नहीं लेना चाहती, वो क्राइम सीन पर थे. Has been agreed court by the council being have to put it similar according to the formal communication under the solicitor from the CBI and the taken on the court directed to that any concern expressed by the original petitioner should be submitted to the Solicitor General for transmission to the CBI. Para number 6 and 7 is also important. Para number 7 में Wikipedia disclose of identity mention है. The court directed Wikipedia to comply with the Indian laws that prohibit disclosing the identity of the deceased in case involving alleged rape and murder. वही कहा गया है कि during the course of the court of praise that the Wikipedia still continue to maintain on its website the name of the deceased and the provision of Indian law clear respect in this governing identity disease of the case involving alleged rape, murder, not below the Wikipedia shall therefore take the injection and should take issue to भाई विकीपीडिया को आ गया कि एक्यूज का नाम हटाएं वो अपने केस से. विकीपीडिया जो कि आप सब जानते हैं फ्री एक जगह है जहाँ पर फ्री का कंटेंट बहुत अवेलेबल है, तो फ्री में अपडेट कर देते हैं, तो उसको हटवाने की बात की है कि डिसीज का नाम हटाना है हर जगह से, ताकि एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बनी रहे. Affidavit has been filed on behalf of the Sri Narayan सो पार्ट 7 में वही बताया गया. और उसके बाद पार्ट 8 में अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं वो कि हमने वेस्ट बंगाल हॉस्पिटल में आउटलाइन दी प्लान्स टू अपग्रेड ड्यूटी रूम्स, टॉयलेट फैसिलिटी एंड सीसीटीवी कैमरा इन मेडिकल कॉलेज एंड पब्लिक हॉस्पिटल जो है. द कोर्ट टुक नोट ऑफ दीज एफर्ट्स एंड टैबुलेटेड द स्पेसिफिक
ऑफ द अपग्रेडेशन। वही बोला कि टेबुलर फॉर्म में बताइए क्या क्या अपग्रेड हुआ है, अपग्रेडेशन किया है इन्होंने। पैरा 8 और 9 में बता रहे हैं वो कि हमने क्या क्या किया है। जैसे कि आप पैरा 9 देख सकते हैं एकदम डिटेल में पढ़ना हो तो। जैसे कि इन्होंने बताया कि देयर आर 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 80 एंड 28 in this national one and 37 in the government medical colleges, 37 and 17 government types of medical colleges, while 18 and 12 right as well as consumer of recent duty restroom or the नीचे टेबल में बहुत अच्छे से मेंशन है। जैसे कि एमसीएच में मेल जो है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रूम जो थी 732 थी, जिसमें से फीमेल के जो थे वो 444 थे, टोटल 1176 थे। अब एडिशनल ड्यूटी रूम रेस्ट रूम सैंक्शन किए गए हैं जो 536 मेल के हैं, 357 इनके हैं। वर्क हैज स्टार्टेड एंड डायरेक्शन हैज बीन इशूड टू एग्जिटिंग। तो इस तरह की एडिशनल चीज़ें बनती जा रही हैं, एडिशनल सीसीटीवी कैमरा और इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। ये इन दोनों पेजेस पे इनने मेंशन किया है प्रॉपरली इस पेज में। उसके बाद participation of the code directed that the upgrading of the facility should involve a team including representative from the both senior and junior doctors to ensure the work is done in line with their concern। उनके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको कंसल्ट किया जाए पार्ट नंबर 10 में। उसके बाद बायोमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं पैरा 11 में। द कोर्ट ऑर्डर दैट द बायोमेट्रिक फैसिलिटी शुड बी इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल एक्सेस to restrooms and unauthorized individuals should not be allowed in critical areas. Women security personnel are to be deployed। वही उस एरिया में कोई आएगा जाएगा नहीं, बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल होने चाहिए। इवन बायोमेट्रिक्स एक्सेस जो हो वो रेस्ट रूम्स में भी होने चाहिए। कोर्ट के अलावा किसी और को आना जाना अलाउड, वो सॉरी जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसके अलावा किसी को आना जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। दी एफिडेविट इंडिकेटेड दैट 910 एडिशनल वुमेन सिक्योरिटी पर्सनल आर बीइंग ट्रेन्ड एट द पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुड बी प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल। तो 910 एडिशनल वुमेन भी हैं जो ट्रेन हो रही हैं, जो आएंगी हॉस्पिटल की सेफ्टी के लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल करना, रात्रिय साथी मेंशन करके लिखा हुआ है, कॉल्ड एज हेल्पर एट नाइट on 13 September 2020, West Bengal Healthcare on the government issued a government of proposing DD engage of 15 से 14 सिक्योरिटी पर्सनल ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगा रहे हैं। वो प्रोग्राम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रात्रि साथी विच इज हेल्पर एट नाइट। दीज पर्सनल्स आर सपोज्ड टू बी engaged by outsourcing through an agency nominated by the government for a period of 1 year. During the course of hearing, serious reservations have been expressed by the council appearing on behalf of the senior junior resident doctor, clearing the month of background that the offence present have been by a civic volunteer who are contractual recruiter. The state government shall bearing the mind and appropriate take policy decision after considering all the stakeholders। तो पॉलिसी के थ्रू तो ठीक बात है, बट इशू यहाँ पे ये है, इशू क्या उठाया उन्होंने, इशू उठाया कि अनाउंस किया तो है प्लान तो 514 लोगों को लगाने का, बट डॉक्टर्स ने कहा है कि जो कंसर्न है वो पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल वॉलंटियर नहीं किया है जो कि एक प्रोग्राम के थ्रू आया था, तो देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम सब स्टेक होल्डर्स से ही परमिशन कंसल्ट करने के बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। That a court ruled that imposing condition bearing women doctors from night duty or shift exceeding 12 hours would be unconstitutional and affirming gender equality in workplaces। Obviously part 13 में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने क्या रगड़ा है। Apart from the above concern, attention of the court have been drawn on order 19 अगस्त 2024 स्टेट गवर्नमेंट दैट 19 अगस्त को स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि वुमेन डॉक्टर शैल नॉट बी डिप्लॉयड एट नाइट एंड वुमेन डॉक्टर शैल नॉट बी एम्प्लॉयड on any shift exceeding 12 hours. We find judgment reservation have been expressed particularly on behalf of the senior junior doctor as well as different categories represented doctor. The basic purpose must be ensure the consumer safety, ensure that men and women do not demand any special concession but require the states create condition in which the safety of all times during a day and night observe that we are agreement of the objective of the council of the doctor that imposing the condition that a woman doctor will not be employed भाई रात को नहीं निकलेंगे, ये तो वही बात होगी कि रात को मत निकलो क्योंकि रेप हो रहा है। ये तो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बहुत ही गलत बात है। कोर्ट ने एकदम सीरियसली कंडेम किया है इस बात को कि ये तो अनबायस्ड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो जाएगी। ऐसे कैसे हम इस तरह की चीज होने दें किसी भी राज्य में किसी भी पॉलिसी में। तो वही कोर्ट ने सीरियसली कंडेम किया इस चीज को कि वी आर इन एग्रीमेंट द सबमिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ डॉक्टर दैट imposing a condition that women doctor will not be employed at night would pose a serious implementation of other clear medicine as we already noted the women doctor is to provide similar conditions to workplace safety that should extend to across the border to meet male and as well as female women doctors submitted
Bengal has issued the court that any such condition which casts a cloud on the basic constitutional promises, the gender equality shall not be enforced here. एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ वुमेन डॉक्टर वही बोल रहे हैं पार्ट 13 में कि द कोर्ट रूल दैट इंपोजिंग कंडीशन बेयरिंग वुमेन डॉक्टर्स फ्रॉम नाइट कि रात को काम मत करो और 12 घंटे की शिफ्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर अब ये अनफेयर नहीं हो जाएगा अगर मेल डॉक्टर जो है उनके साथ अनफेयर हो जाएगा कि 12 घंटे से ज़्यादा वो क्यों काम करें और नाइट में सिर्फ औरतें क्यों ना काम करें। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अफर्मिंग एंड जेंडर इनक्वालिटी इन वर्कप्लेस, दैट इज वेरी रॉन्ग। The court reviewed that the demand for junior doctor front, including administrative accountability, safety lapses, live stream dialogues, installation of CCTVs, grievance redressal system, and formation of internal complaint committees बननी चाहिए उनके लिए। Point 14 में mention किया है। The court directed that the state government of Bengal to create a monitoring committee for the hospital safety grievance redressal system counseling center to support doctors under stress. MS जयसिंह जो है वही MS जयसिंह जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे थे जूनियर डॉक्टर को। इन्होंने कहा कि दे वुड रिटर्न टू वर्क इफ सेफ्टी कंडीशन आर मेट। सिंपल बात है भाई, सेफ्टी होगी तो आएंगे। एंड नो प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर्स, द स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल सी कपिल सिब्बल एश्योर्ड दैट द कोर्ट नो प्यूनिटिव एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट डॉक्टर हु रिज्यूम वर्क। कपिल सिब्बल पिछले डेट से यही बात कर रहे हैं कि कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं किया जाएगा अगर वो काम पर वापस लौटते हैं तो। कोर्ट ने फिर उस वक्त 27 सितंबर 2024 की डेट दी है। बात वही है कि केस में जो है जो मेन मुद्दा है वो धीरे धीरे उभर के आता जा रहा है। अब जैसे कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उनका कंसर्न अलग है, सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका कंसर्न अलग है। किस तरह से कमिटीज़ फॉर्म होंगी, किस तरह से जो पर्सनल्स हैं, किस तरह से जो एडिशनल पर्सनल्स को ये लोग डिप्लॉय करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किस तरह से उनकी उनसे सेफ्टी, वो तो सेफ्टी कर लेंगे पर उनसे सेफ्टी की क्या प्रोविजन होंगे, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होंगे, किस तरह से कोर्ट पॉलिसीज़ को ऑब्जर्व करेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। अब ये जो रिपोर्ट में मेंशन है, कोर्ट के ऑर्डर्स में मेंशन है, क्या उन्होंने एक्चुअली इतना काम करवा दिया है, ये सब कोर्ट चेक करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें आगे देखनी होगी। जैसे कि एक बहुत बड़े फिलोसफर है साइमन डे, उन्होंने कहा है कि ही हैव आर्ग्यूड दैट रेप इज नॉट ओनली एन एक्ट ऑफ वायलेंस but also a reflection of a patriarchal society that objectify women. For society to achieve greatness, it must dismantle gender hierarchies and treat women as equal, ensuring their autonomy and freedom from sexual violence. So freedom from autonomy and freedom from and freedom from the बायसनेस। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए आपको सोच बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में रखनी पड़ेगी। इस तरह की बात करना कि रात को औरतों को मत भेजो और रात को लड़कियां नहीं निकलें, रात को काम ना करें, नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम ना करें, ये सब दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। वी नीड अ सोल्यूशन फॉर लॉन्ग रन। इसीलिए हम कोर्ट में आते हैं किसी भी मैटर को लेके। तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, सब जुड़ाइज है, इस तरह की चीज़ों पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ इस तरह की वीडियोस से आप सिर्फ देखें कोर्ट किस तरह से चीज़ें लिखता है, आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ें, किस तरह से दूसरे काउंसिल एक दूसरी बात को जो आपको सही लगे उस बात को किस तरह से काउंटर करते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर काम सीख सकें इस तरह से। इन वीडियोस का पर्पज सिर्फ यही है कि आपकी हेल्प हो, आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी मैं दे सकता हूँ वो मैं दे पाऊँ। एंड हम इस केस के ऊपर बने रहेंगे। 27 सितंबर 2024 को नई डेट दी गई है, देखते हैं उस दिन दोनों पार्टीज का कहना क्या है, कोर्ट क्या कहता है। क्या ये जो टेबुलर फॉर्म है कोर्ट इससे सेटिस्फाइड है, क्या डॉक्टर्स इससे सेटिस्फाइड है, क्या कोर्ट में डॉक्टर्स वापस आएंगे, क्या डॉक्टर्स वापस ड्यूटी पे आएंगे। तो ये देखना होगा नेक्स्ट डेट पर कोर्ट के ऑर्डर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग एंड वील स्टिक अराउंड। थैंक यू सो मच।